راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں ہوں عادل مشتاق۔ میری طرف سے آپ سبھی کو سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، سلامت ہوں گے، اور دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ تو سامعین، آج ریبا کسی مصروفیت کے باعث ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ آئندہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ گزشتہ دنوں میں میٹرک کا اور ایف اے کا رزلٹ اناؤنس ہوا، اور رزلٹ میں بڑے اچھے نمبرز بچوں نے حاصل کیے۔ میں غور کر رہا تھا کہ بچے جب آتے ہیں تو آتے ہی ٹیوشن سینٹرز پر، کوچنگ کلاسز میں چلے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ برڈن ہے، اور اچھی بات ہے اگر سہولت ہے، اگر وسائل ہیں تو جانا چاہیے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو یہ ایک بہانہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے محلے میں ایک شخص ہیں جن کی صرف بیٹیاں ہیں، اور ان کی ایک بیٹی نے میٹرک میں بغیر کسی ٹیوشن کے، بغیر کسی ایکسٹرا وسیلے کو استعمال کرتے ہوئے گھر بیٹھ کر صرف اسکول جا کر سب سے زیادہ نمبر لیے، اور 1042 نمبر جو نمایاں نمبر تھے انہوں نے حاصل کیے۔ تو اس کے پیچھے میں سوچ رہا تھا، جب میں نے ان کے والد صاحب سے بات کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی ٹیوشن نہیں پڑھی، کوئی ایکسٹرا کلاس نہیں لی، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا بھی کام کرنے میں ہاتھ بٹایا۔ تو بات یہ ہے کہ جناب، ان سہولیات کے بغیر بھی اگر ہم دل سے محنت کریں اور خدا کا فضل اور اس پر بھروسہ کریں تو ہمیں ضرور اچھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس پر ہم مزید بھی بات جاری رکھیں گے، لیکن آغاز کریں گے ہم تلاوت کلام مقدس سے۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور بہت ہی خوبصورت اقتباس کلام مقدس میں سے کہ اچھے شخص کی یاد ہمیشہ رہتی ہے اور شریر جو ہے وہ نابود ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہمیں اس زندگی میں جو موقع ملا ہے زندگی گزارنے کا، ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، وہ کام کرنے ہیں جو خدا کی نظر میں بہتر اور لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث بنے، آمین۔ آئیے خداوند کی حمد کریں، اس کی ستائش کریں، اور سنتے ہیں حمدیہ کی۔ خداوند میں مسرور رہ، خداوند میں مسرور رہ، تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اس پر تو توکل کر، اس پر تو توکل کر، یہوہ خدا ہی سب کچھ کرے گا، یہوہ خدا ہی سب کچھ کرے گا۔ خداوند میں مسرور رہ، خداوند میں مسرور رہ۔ راہوں کو اپنی اس پہ چھوڑ دے، راہوں کو اپنی اس پہ چھوڑ دے، نا امیدی سے ناتا توڑ لے، نا امیدی سے ناتا
खुदा, तेरी रास्त बाजी को खुदा, देख नूर की मानिंद रोशन करेगा, देख नूर की मानिंद रोशन करेगा, उस पर तू तवक्कल कर, उस पर तू तवक्कल कर, यहोवा खुदा ही सब कुछ करेगा, यहोवा खुदा ही सब कुछ करेगा, खुदावंद में मसरूर रह, खुदावंद में मसरूर रह। जी तो इस वक्त बहुत से खतूत मेरे सामने मौजूद हैं, कुछ हाथ से लिखे हुए और कुछ टाइप किए हुए, तो आइए उनको शामिल करते हैं। सबसे पहला जो खत मेरे पास मौजूद है ये लिखा है हमारे बहुत ही प्यारे भाई अमजद खान ने, और अमजद खान कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी बहुत अच्छा है, प्रोग्राम में लिसनर्स के दिलों की धड़कन और जान इनके खत और एसएमएस शामिल करना होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अमजद भाई बात यह है कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस, आपके खतूत हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल की धड़कन भी खुशी से गार्डन हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया आपकी इन मोहब्बतों के लिए, इन जज्बात के लिए, जिनको हम जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई, इसी सिलसिले को इसी तरह जारी रखिएगा। मुबशर हुसैन अशर ये बात तो मुख्तसर लिखते हैं लेकिन बहुत अच्छी लिखते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे मद्दे मुकाबिल कोई भी हो हमेशा हक का साथ दो। तो वाकई मुबशर आपने बहुत अच्छी बात की, हमें डर कर नहीं बल्कि सच्चाई पर बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी पर डटे रहना चाहिए। ज़ाहद हुसैन है जी, सियालकोट लिसनर्स क्लब सियालकोट से आपका ताल्लुक है। आपने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और कहते हैं कि जी शफाकत अली बाजवा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्हीं के तवस्सुफ से मैं प्रोग्राम में शामिल हुआ, आपने प्रोग्राम में शामिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब आपका भी बहुत शुक्रिया और शफाकत भाई आपका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने जाहिद भाई जैसे प्यारे दोस्त को राह जिंदगी से मुतारफ करवाया। तो जाहिद भाई उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मोहब्बत हमें वसूल होती रहेगी और ये हमारा सिलसिला इसी तौर पर मजबूत रहेगा। एक नन्हे मुन्ने बच्चे का खत है जी मेरे पास और इसका नाम है मरियम शफाकत बाजवा और ये मेरे ख्याल में बेटी हैं शफाकत साहब की और वाह जी वाह इनके साथ छोटा बच्चा है रांझा शफाकत। शायद मैं नाम जो पढ़ने में अगर कुछ गलती हो जाए तो आइंदा आप जरूर दुरुस्ती कर दीजिएगा। आपने कहा है कि आज का प्रोग्राम आंटी मीना परवेज की आवाज में सुना तो दिल बहुत खुश हुआ और कहती हैं कि आज सिलसिला सेहत की बातें सुनने में मिला, उसमें माँ पर और बच्चे पर बात की गई तो बहुत अच्छा लगा और कहती हैं कि मेरा खत इनामी प्रोग्राम में शामिल होगा, मुझे जरूर बताइएगा। तो नन्हे मुन्ने बच्चों हम आपको जरूर बताएंगे। पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो काविश है वो इसी तौर पर जारी रहेगी। थैंक यू सो मच जी। तो जैसे ही हमने जनाब हाथ से लिखने वालों को दावत दी तो उन्होंने भी बड़ी खुशी से दावत कबूल की और ये खत जो हाथ से लिखा गया खत है जनाब सिराजुद्दीन नजामानी साहब, बहुत प्यारा नाम है जी आपका, बदीन से आपका ताल्लुक है। आप लिखते हैं कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप प्रोग्राम राह जिंदगी में मुझे जगह देते हैं और मैं पहले तो पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने हाथ से लिखे हुए खतूत को अहमियत दी और फिर कहते हैं कि आपने इनामी मुकाबला शुरू करवाया और फिर कहते हैं कि सभी सिलसिले इतने लाजवाब हैं कि हम बहुत इससे फायदा उठाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर मेजबानों की भी इन्होंने तारीफ की है। तो सराजुद्दीन भाई आपका बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत के लिए और आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है और बड़ा सिस्टमैटिक मुझे आपका लगा खत। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी मोहब्बत इसी तरह झलकती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ हुसैन कहते हैं कि प्रोग्राम में कायनात की सैर में ख्योड़ा कान के बारे में मालूमात पसंद आई और कहते हैं कि मुझे पता चला कि ये दुनिया की बड़ी नमक की कानों में से एक कान है और फिर ये भी कहते हैं कि मेरे शौक का तर्जुमान है राह जिंदगी। वाह मुशर्रफ हुसैन आपका खत बड़ा अदबी होता है, आपकी बातें बड़ी अदबी होती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह, बहुत ही प्यारा, बहुत ही रंगीन, बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ लिखा गया खत है जी हमारे प्यारे भाई चौधरी फहीम नूर और अब्दुल गफूर कैसर साहब का। आपने कहा है डियर रीबा नईम और अच्छे से आदिल मुश्ताक भाई,
آپ کو سلام خلوص. تو ہماری طرف سے بھی جناب آپ کو سلام. آپ نے کہا کہ پروگرام میں ابتدائی گفتگو بہت اچھی لگی. کہتے ہیں کہ آپ نے جو دوسروں کی مدد اور طالب علم کی فیس ادائیگی کے تعلق سے بات کی, تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسی کاوش شروع کی ہے اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں جو کتابوں سے محروم ہیں, ان کی مدد کر سکیں. تو بہت اچھی کوشش ہے جی آپ کی. آپ کا خط بہت اچھا ہے. آپ کی اس محبت کے لیے, آپ کی اس کوشش کے لیے بہت بہت شکریہ. تو جناب خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بھی ہمیں ضرور خط لکھیے. اس کے لیے پتہ نوٹ فرما لیجیے. پروگرام راہ زندگی, پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. ایس ایم ایس یا فون کال کے لیے نمبر ہے 0333 48259663. فیس بک کے لیے آئی ڈی ہے زندگی انور. تو کوئی بھی میڈیم استعمال کیجئے, ضرور ہم سے رابطہ کیجئے, ہمیں بہت اچھا لگے گا. تو جناب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے بہت ہی من پسند سلسلے یعنی حضرت داؤد کی زندگی پر مبنی ڈرامہ چراغ راہ. تو آج سننے کو ملے گی ہمیں اس ڈرامے کی 16ویں قسط. آئیے مل کر سنتے ہیں. ناتن نبی, کیا بات ہے, بتاؤ مجھے. سنو داؤد بادشاہ, ایک شہر میں 2 شخص رہتے تھے, ایک امیر آدمی اور دوسرا غریب. امیر آدمی کے پاس بہت سے بیل اور بھیڑیں تھے, لیکن اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا جسے اس نے خرید کر پالا تھا. وہ اس کے اور اس کے بچوں کے ساتھ پلی تھی. وہ اسی کے ساتھ کھاتی پیتی تھی اور اسی کی گود میں سوتی تھی. وہ اس کی بیٹیوں جیسی تھی. امیر آدمی کے پاس کوئی مسافر آیا. اس نے اس مسافر کے لیے اپنی بھیڑ بکریوں میں سے تو کچھ نہ لیا, بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس مسافر کے لیے پکائی. یہ کون شخص ہے؟ مجھے خداوند کی حیات کی قسم, وہ شخص واجب القتل ہے. اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا. اسے اس غریب پر ذرا ترس نہ آیا. کون ہے یہ آدمی ناتن نبی؟ وہ شخص تم ہو بادشاہ سلامت. میں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ خدا نے یہی پیغام دیا ہے تیرے لیے. اس نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا, تیرے سارے دشمنوں سے تجھے چھڑایا. میں نے تیرے آقا ساؤل کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی. اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھے دیا. اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دے دیتا. سو تو نے کیوں خدا کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے. او میرے خدا, یہ سچ ہے. او میرے خدا, مجھ پر رحم کر. خدا تجھے اس بات کی سزا دے گا داؤد. اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی اور تیرے گھر ہی سے کوئی شخص تیرے خلاف اٹھے گا. اور بالکل ویسا ہی ہوا. داؤد کے بڑے بیٹے امون نے اپنے سوتیلے بھائی ابی سلوم کی بہن تمر کے ساتھ زیادتی کی. خادمہ, میری بہن تمر کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے آقا بسلوم. اچھا. لیکن ٹھہرے آقا, آپ اندر نہ جائیں. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ بہت پریشان ہے. کیا بات ہے؟ بتاؤ مجھے خادمہ. شہزادے امنون نے انہیں اپنے پاس بلایا تھا کہ وہ اس کے لیے کھانا لائے. پھر کیا خادمہ؟ وہ او میرے مالک,
मैं नहीं बता सकती। खादमा, तो क्या अमनून ने? हाँ शहजादे, उसने बड़ा जुल्म किया है शहजादी तमर पर। उसने उसकी इज्जत, ओह बस बस। अमनून, बेगैरत, जलील माँ की औलाद। सौतेली सही पर बहन तो लगती थी तेरी। खादमा, क्या अब्बाजान दाऊद बादशाह को बताया? नहीं आका। बादशाह को बताना जरूरी है। अमनून बादशाह का बड़ा बेटा सही, लेकिन बादशाह को उसे सजा जरूर देना पड़ेगी। अब्बाजान दाऊद, कई हफ्ते गुजर चुके हैं। मैंने आपको अमनून के मुतालिक बताया था, कई बार आपको याद भी दिलाया है। क्या आप कुछ नहीं करेंगे अब्बाजान? आपको इस बात की कोई परवाह नहीं? मुझे परवाह क्यों नहीं अबी सलूम, मुझे बहुत रंज हुआ है। अगर ये बात... अब्बाजान, आप दरबार से बाहर निकलें और किसी से भी पूछ लें, सब जानते हैं ये बात। जो कुछ भी हुआ है अबी सलूम, इसका फैसला मुझे करना है और मैं मुनासिब वक्त पर करूंगा। मैं जानता हूं आप कोई फैसला नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं। बस अबी सलूम, काफी है, अब तुम जा सकते हो। मैं जा रहा हूं। मुझे शर्म आती है कि मैं अपने आप को दाऊद बादशाह का बेटा कहूं। भाई यूनदब। क्या बात है शहजादे अमनून? मैं तुम्हारे साथ अबी सलूम के पास जा तो रहा हूं, लेकिन दिल नहीं करता मेरा। ऐसी तो कोई वजह नजर नहीं आती, क्या बात है? लेकिन ऐसे भाई के पास जाना भी कोई जरूरी नहीं। भाई ये भेड़ों के बाल कतरने का वक्त है, खाने पीने मिलने मलाने के दिन है। इसी रस्म को पूरा करने के लिए अबी सलूम हर साल दावत करता है। बादशाह के सब बेटों को बुलवाया है उसने, सब भाई होंगे वहां। यूनदब, पूरे 2 साल अबी सलूम मुझसे नहीं बोला। दिल नहीं करता उसके पास जाने को। अगर अब्बा जान ना कहते तो मैं कभी ना आता। अब तो खैर हम पहुंच ही गए हैं। देखो, अभी सलूम हमें लेने भी आ रहा है। सलामती हो भाइयों, खुश आमदेद। सलामती हो शहजादे अबी सलूम। आज तो सारा खानदान इकट्ठा हो रहा है। आज रात हम जश्न मनाएंगे। आए मैं आपको आपका खैमा दिखाऊं। भाई अमनून, ये मेरी खुशकिस्मती है, आज आप मेरे घर में हैं। मुझे यकीन है आप भी बहुत खुश होंगे। हाँ शुक्रिया अबी सलूम, बड़ा मजेदार खाना किया तुमने। मैंने आपके लिए सबसे अच्छा गोश्त पकवाया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप हर वो चीज खुद ही हासिल कर लेते हैं जो आपको पसंद हो। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? इस बात का मतलब है कि आप जैसे रुतबे वाले शख्स को वो सब कुछ जरूर मिलना चाहिए जिसके आप हकदार हों। क्या मिलना चाहिए मुझे? इंसाफ अमनून, इंसाफ, वही इंसाफ जिसका फैसला अब्बा जान को 2 साल पहले करना चाहिए था। आप समझते हैं आप जो चाहे कर सकते हैं। खबरदार अबी सलूम, कोई हरकत करने की कोशिश ना करना। अबी सलूम, हम सब मसल्ला हैं, खबरदार तुमने मेरे कोई... सब खादम भी मसल्ला हैं, तुम सब उनके घेरे में हो। अमनून के सिवा सब भाई बाहर चले जाएं, मेरा और अमनून का मामला है। बादशाह दाऊद, हजूर अभी खबर आई है। क्या है खादिम, बोलो। बड़ी बुरी खबर है, बाल हजूर से आई है। अभी सलूम ने आपके सारे बेटों को कत्ल कर डाला है, सब मारे गए हैं। ओह मेरे बेटे। आका कोई नहीं बचा। क्या किया अभी सलूम ने? ओह मेरे खुदा, ओह मेरे खुदा। हजूर, आपका भतीजा यूनदब आया है, वो अभी भी बाल हजूर से आया है। सलामती, सलामती हो बादशाह, सलामत। यूनदब, मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सच है?
क्या अभी सलूम ने मेरे बेटों को मार डाला? नहीं मेरे मालिक, सब शहजादे नहीं मरे, सिर्फ अमनून मारा गया है। जब से अभी सलूम की बहन तमर से ज्यादती हुई, वो यही चाहता था। ओह, अमनून मेरा बेटा। और अभी सलूम कहाँ है? वो भाग गया जनाब, जसूर की तरफ, अपने मामू के पास, अमी हुद के बेटे तलमी के पास जनाब। मेरा बेटा मर गया, दूसरा मुझे छोड़ गया। जो कुछ नातन नबी ने कहा था वही हुआ, वही हुआ। तो आज की किस्त में बड़ी खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिलती है कि सच और दयानतदारी के साथ जो बात करनी है उसमें किसी भी तरह का डर और खौफ नहीं होना चाहिए, और यही मुजाहरा किया आज नातन नबी ने भी, और बादशाह के सामने उनका गुनाह एहा किया। तो अभी वक्त है जनाब अगले सिलसिले की तरफ बढ़ने का, यानी सिलसिला आईना हम सुनने जा रहे हैं, जिसमें आज आमने सामने हैं ख्वाब और हकीकत। आइए मिलकर इनकी तकरार सुनते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? क्या बात है, तुम हर वक्त गुनूदगी में रहते हो ख्वाब? मैं अपने आप में मगन हूँ हकीकत। अच्छा, तुम अपनी खैर बनाओ। भाई मेरे लिए तो हर तरफ खैर ही खैर है, सुकून ही सुकून है। तुम तो खुद फरेबी का शिकार हो गए ख्वाब। मैं? हाँ तुम। जरा जिंदगी की तरफ निगाह दौड़ाओ, तुम्हें कई सच्चाइयां देखने को मिलेंगी। मैं क्यों अपने आप को मुसीबत और अजाब में मुब्तला करूं? रहने दो, मैं आंख बंद करके अपने लिए खुद एक दुनिया पैदा कर लेता हूँ। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो ख्वाब। नहीं, तुम अपने चाहने वालों को भी बेअमली की तरफ रागिब करते हो। ये तुम्हारी भूल है। भूल नहीं। अरे मेरे मजे लूटने वाले तुम्हारे खौफनाक साए से भी डरते हैं हकीकत। तुम बहुत कड़वी हो। देखो ख्वाब, तुम लोगों को मेरा सामना करने से रोकने की कोशिश मत किया करो। मैं कब रोकता हूँ? क्यों लोगों को परेशानी और दुखों से दो चार करने का तहिया कर रखा है तुमने हकीकत? लोगों को पेश आने वाली मुश्किलात सपनों से टल तो नहीं जाती ख्वाब। अरे ठीक है, मुश्किलात टल नहीं सकती, लेकिन याद रखो मेरे चाहने वाले आने वाली मुसीबतों के बारे में सोच सोच कर हलकान नहीं हुआ करते, इसीलिए नाकाम रहते हैं। मेरे दायरा असर में रहने वाले हर मुसीबत और परेशानी के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों को खामखा खतरात से खेलने की तरगीब देती हो हकीकत? खामखा नहीं, यही तो जिंदगी है, और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। तुम्हारे दाम में आने वाले जिंदगी की हकीकी रानाइयों से बेखबर रहते हैं। देखो हकीकत, तुम बराह रास्त मुझ पर तंज कर रही हो। ये तंज नहीं, मैं अपने हुस्न से लोगों को अपना असीर बनाता हूँ। ज़ाहिरी हुस्न। अरे लोगों को मेरे अलावा इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं रहती। क्या बात करते हो ख्वाब, 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया सिमट कर एक कंप्यूटर स्क्रीन पर मुंतकिल हो चुकी है। बस बस बस, अब साइंस की तरफ आ गई हो तुम। सुनो तो, अब तो कायनात की सारी हकीकतें खुलकर सबके सामने आ चुकी हैं। मुझे पता है। और तुम अब भी लोगों को आंखें बंद करने का मशवरा देते हो। अरे आंखें बंद करते ही मेरे चाहने वाले एक अफसानवी दुनिया में खो जाते हैं, जिसमें राहतें ही राहतें होती। खुदा के लिए लोगों को कबूतर बनाना छोड़ दो, जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि वो उसे नहीं खाएगी। अरे ये आरजी लम्हात बड़े खुशगवार होते हैं हकीकत। और तुम चंद लम्हों की लज्जत के लिए लोगों की जान से खेलने की कोशिश करते हो। तुम मेरे मामलात में टांग मत अड़ाओ। मेरी वजह से न जाने कितने दुखी गरीब और बेकस लोग आरजी खुशी का लुत्फ लेते। मैं तुम्हारी कैद से लोगों को निकालकर हालात से लड़ने का हुनर सिखाती हूँ। तुम क्या सिखाती हो? खाक सिखाती हो। अरे मेरे चाहने वाले तुम्हारे भयानक सूरत को कभी कबूल नहीं कर सकते। तुम्हारी खाम ख्याली है, मुझे कबूल करना पड़ता है। मैं लोगों को सच का सामना करना सिखाऊंगी। खाक सिखाओगी तो? और ख्वाब, मैं उन्हें हालात का मुकाबला करने का दर्स देती रहूंगी। बस बस बस,
अब ऐसे दावे तुम्हें ज़ेब नहीं देते। तुमने लोगों को हुसूल रिज़्क के लिए, जिंदा रहने के लिए जिद्दोजहद के नाम पर जलील करके रख दिया है। मैं उन्हें मीठे सपनों में गुम करके आरज़ी खुशियों के लिए बेकार करता रहूंगा। मैं लोगों को बेअमल और बेरोजगार करके छोड़ूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और सुनो, मेरा अगला निशाना तुम हो। हाँ, तुम। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? तो सुनिए, हमने आज ख्वाब और हकीकत की तकरार, यकीनन बहुत ही अच्छी बातें, और उम्मीद करते हैं कि आज का सारा प्रोग्राम और इसके सभी सिलसिले आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो जनाब, बच्चों को अगर बहुत अच्छी सहूलियात, लग्जरी लाइफ ना भी मिले तो भी अगर अच्छा माहौल, अच्छी तरबियत और अच्छा नमूना उनको दिया जाए तो वो अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और सरफराजी और तरक्की भी कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस चीज पर गौर करना जरूरी है। तो जनाब, इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, लेकिन इख्तिताम करने से पहले हम झुकेंगे खुदावंद ताला के हुजूर और दुआ करेंगे। खुदावंद ताला, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें सलामती अता की, और हम शुक्रगुजारी करते हैं खास तौर पर उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ अच्छी कामयाबी और कामरानी हासिल की। हम दुआ करते हैं तमाम सामाईन के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके खानदानों के लिए, उनको महफूज और सलामत रखिए। और इसी के साथ हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की की दुआ करते हैं। ये दुआ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूंगा और आपसे चाहूंगा इजाजत। अपने होस्ट आदिल मुश्ताक को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।